good evening. So today we are going to start a new topic, that is adjectives. Okay. So in the last class we have talked about verbs, and now we are seeing the adjectives. So basically what is an adjective? Adjectives are basically the qualities or the state of noun. Okay. So कोई भी चीज की अगर quality बतानी हो या state बताना हो, okay, especially of a noun if we are talking about, then we use adjectives. Adjectives are pretty much you can say common. हम लोग जो है डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज्यादा जो एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं, knowingly and unknowingly. Like if we say that her voice is sweet, or she is a beautiful girl, he is a handsome boy. Okay, so yeah, handsome, beautiful, स्वीट, ये सारी की सारी जो है बेसिकली एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आ जाएगी. ठीक है. तो एडजेक्टिव्स वही होता है कि कोई भी चीज की क्वालिटी बताए, कोई भी चीज का स्टेट बताए, स्पेशली ऑफ अ नाउन. अगेन हियर यू कैन सी द एग्जांपल: enormous, dog-like, silly, yellow, fun, fast. All this will basically come under the category of adjectives only. Apart from the describing qualities, adjectives को हम लोग quantities बताने के लिए भी यूज करते हैं. ठीक है. सो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि क्वालिटी हो जाएगा ऑफ अ नाउन, दूसरा पॉइंट हो जाएगा या फिर स्टेट, and second point will be the quantity of a noun. Okay, quality and quantity of a noun. So for both the things we basically use noun. Again, for quantity we can use some, few, many, millions, 11. Okay, so numbers जितने भी आते हैं वो basically adjectives की कैटेगरी में ही आएंगे. एडजेक्टिव्स का काम यही होता है कि वो बेसिकली नाउन को डिस्क्राइब करे, जैसे कि किस टाइप का नाउन है. जैसे ये क्वेश्चंस बेसिकली एडजेक्टिव्स आंसर करते हैं, दैट व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज, व्हिच वन, हाउ मेनी. ओके, सो ये जो काम है वो एडजेक्टिव्स का है. बेसिकली नाउन को हम लोग डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी बोलते हैं, जो कि नाउन को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो प्रोवाइड अस एडिशनल और further information, like it will tell us about the color, size, condition, sound, appearance. Okay, सारी की सारी चीजें. So here in this box you can see that there are 10 adjectives: charming, cruel, fantastic, gentle, huge, perfect, rough, sharp, tasty, zealous. Okay, so आजकल basically there is the era of an Instagram. So whenever you will open the Instagram, you will be seeing that many of the user name, okay, सारे के सारे जितने भी यूजर्स हैं इंस्टाग्राम के, सो यूजर नेम जो है बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है. ओके, एंड दे बेसिकली कीप ट्राई टू बी यूनिक बाय कीपिंग द एडजेक्टिव्स ओनली. ओके, एडजेक्टिव्स जो है वो अपने नाम के आगे या पीछे लगा के वो लोग जो है यूनिक यूजर नेम देते हैं. ओके, सो एडजेक्टिव्स जो है इसका काम यही रहता है, ओके, दैट इट विल डिस्क्राइब अ नाउन. Again, as I have told you that it provides us extra information, so size, texture, shape, feelings, times. Okay, सारी की सारी चीजें बताता है. शेप में भी जितनी भी शेप्स होती है will be basically adjectives. Feelings, again adjectives. Time, again adjectives. Swift, fast, late, quick, rapid. Size, big, small, large, huge, short. सारी की सारी जो है adjectives हो जाए. Again adjectives को color, opinion, size, age, shape, origin, material, distance, temperature, time, ये सबके लिए यूज करते हैं. ओके, so go through this slide and see carefully, and then we will proceed further. Okay, so I hope you have gone through this. Now we will do some of the interesting, you can say, question. So the first question is, the basement at Tom's house is scary because it's so dark. So basically in the first sentence you have to identify the adjective. Okay, so I am doing first one for you, and then the rest you try to answer it. Okay, the basement at Tom's house. Okay, so first try to understand the meaning of the sentence. कि टॉम के घर पे जो बेसमेंट है वो बहुत ही ज्यादा स्केरी है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा अंधेरा है. ओके,
So here scary will basically come under the category of adjective. Again dark will also come under the category of adjective only. Okay, so these two are adjectives. Again you can notice one more thing here, Tom's house. Okay, Tom's house where there is apostrophe s present. So when we were doing the possessive noun, I have already told you कि इस तरह का अगर apostrophe s आता है ना, so you have to know that this will come under the category of possessive. Okay, तो यहाँ पे ये possessive noun की category में आ रहा है. Okay, so let's do this thing. Okay, second one, my mom drinks coffee but I think it's disgusting. So what will be the noun in the second sentence? या सो डिस्गस्टिंग विल बी द आंसर. ओके, डिस्गस्टिंग जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे कॉफी को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर एडजेक्टिव. ओके, हियर द नाउन इज कॉफी एंड हाउ वाज द कॉफी? सो कॉफी वाज वेरी डिस्गस्टिंग. हाउ वाज द टॉम हाउस? टॉम हाउस वाज वेरी स्केरी एंड डार्क. Third, if she could be invisible, she would sneak into the movie theater and watch movies. So what will be the adjective? Invisible हो जाएगा. ठीक है. Okay. When was the last time you felt frightened? Frightened. Okay. So frightened will basically be the adjective. Tess and Christine brought their kitten to cheer me up. So what will be the adjective in the fifth question? Yeah. So cheer will be the answer. Okay. यहाँ पे kitten को cheer करने की कोशिश की जा रही है. Okay. So the rest of you can rest of the exercise you can do. Let's now move forward. Yeah. Let's now move forward to the function of adjective. Okay, so as I have told you that the function of adjective is basically to modify the noun. Okay, and adjectives basically do not modify verb. Okay, verb, adverbs, other adjectives को बिल्कुल भी modify नहीं करते हैं. ये जो काम होता है ये adverb का काम होता है. Okay, when we will be doing the adverbs next, so we will be basically seeing this thing. तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि एडजेक्टिव्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ नाउन्स को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं. बाकी वर्ब्स हो, एडजेक्टिव्स हो, एडवर्ब्स हो, ये सारे के सारे को डिस्क्राइब करने का काम एडवर्ब का होगा, एडजेक्टिव का नहीं होगा. So again you can see the example. Margot wore a beautiful hat to the pie eating contest. मार्गरेट का जो हैट था बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल था. ब्यूटीफुल इज एन एडजेक्टिव. ओके, हैट जो है वो नाउन है. सो नाउन को डिस्क्राइब करने का काम कर रहा है. फरी डॉग्स में ओवरहीट इन द समर टाइम. डॉग्स यहाँ पे नाउन है, फरी एडजेक्टिव है. माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स. अगेन कैंडल इज अ नाउन. The scariest villain of all time is Darth Vader. Again, villain is also the noun. Okay. तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इजीली स्पॉट करना बहुत ही इजी हो जाता है कि कैसे जो है एडजेक्टिव्स वो इमिडिएटली नाउन के पहले आते हैं. ठीक है, ज्यादातर क्या होता है कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन के पहले आते हैं. ओके, और उसको जो है वो डिस्क्राइब करने का काम करते हैं. फरी का मतलब होता है दोज डॉग्स विच बेसिकली हैव फर्स. ओके, फर जो होता है ना जो मिलता है हाउ कैन आई टेल यू, हेरी फरी टाइप का. जैसे डॉग्स होते हैं आपने देखा होगा कि बहुत ही ज्यादा फर वाले होते हैं. लाइक आई विल बी गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ दिस थिंग. इन विंटर्स वी बेसिकली वियर द फरी जैकेट्स जिसमें बहुत सारे फर लगे होते हैं एनिमल्स के स्किन से निकल के. लाइक सपोज द एग्जांपल इज शीप. शीप का जो वुल है बेसिकली फ्रॉम दैट वुल ओनली आवर वुलन क्लोथ्स आर मेड. ओके, तो शीप के वो एक तरह से फर हो जाएगा. या फिर पोलर बियर्स है, या फिर पेंगुइन है. ओके, सो एवरी अदर एनिमल्स हैव बेसिकली फर. ओके, डॉग्स के भी फर होते हैं जैसे कि देयर आर ब्रीड्स ऑफ डॉग्स लाइक हस्की डॉग्स. ओके, हस्की डॉग्स जो होते हैं वो बेसिकली ठंडे एरियाज में मिलते हैं लाइक अलास्का,
फिर अमेरिका, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, तो उन्हीं को फरी डॉग्स बोला जाता है। ओके, ऐसा नहीं है कि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई करने का ही काम करता है नाउन को, बट इट ऑल्सो एक्ट एज अ कॉम्प्लीमेंट टू लिंकिंग वर्ब्स और द वर्ब्स टू बी। ओके, सो हम लोग ने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे लिंकिंग वर्ब जो होता है ना, उसका काम होता है सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक करना। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है कि एडजेक्टिव्स का भी वही काम होता है कि वो लिंकिंग वर्ब्स की हेल्प करता है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था लिंकिंग वर्ब्स का टू बी वाला फॉर्म होता है जिसमें इज, एम, आर, वॉज, देयर होता है। ठीक है, और लिंकिंग वर्ब में हम लोग 5 सेंसरी ऑर्गन्स भी यूज करते हैं, जैसे टू फील, टू सीम, टू टेस्ट। ओके, तो ये सारे के सारे में हेल्प बेसिकली हु डज, एडजेक्टिव डज। ओके, दैट cow sure is happy. It smells gross in the locker room. Driving is faster than walking. Okay, so ये जो है वो हो जाएगा. Now we will basically study that what are the different usages of adjectives. Okay, so adjectives basically tell us that how many things or how many nouns are there, यानी कि quality और क्वांटिटी बताने का काम करता है, या फिर व्हाट हैज बीन टॉक्ड अबाउट इन द गिवन सेंटेंस। ओके, या फिर वो सेंटेंस में ये बताया जा रहा हो कि नाउन किस काइंड का है, किस टाइप का है। तो जितनी भी डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज हो जाएगी ना, वी विल एट्रीब्यूट इट टू एडजेक्टिव। सपोज हियर इन द एग्जांपल, प्लीज यूज 3 white flowers in the arrangement। यहाँ पे 3 और white जो है वो फ्लावर यानी कि जो हमारा नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, फ्लावर जो है वो नाउन है, 3 और white जो है वो एडजेक्टिव है। कितने फ्लावर्स यूज करिए, 3 यूज करिए, तो ये हमारा क्वांटिटेटिव नाउन एडजेक्टिव हो गया। और कौन से कलर का यूज करिए, तो व्हाइट, तो क्वालिटी बता रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों ही जो एडजेक्टिव्स है यू कैन सी इन दिस सेंटेंस। अगेन, जब एक साथ बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ रहे हो ना, so you can separate those adjectives either with a comma or either using a conjunction. Okay, suppose here the sentence is, I am looking for a small good tempered dog to keep as a pet. So here you can notice this comma. My new dog is small and good tempered. Here you can notice the conjunction. ठीक है, जहाँ यहाँ पे and यूज है। जब हम लोग आगे conjunction करेंगे, so it will be more clear to you. But here also you can see this thing. Again, now we will focus on the different types of adjectives. Okay, just give me a minute. Okay, सो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स क्या हो जाते हैं? कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स वैसे एडजेक्टिव्स हो जाते हैं जैसे हम लोग ऊपर वाले पॉइंट में डिस्कस किया ना, दैट दे शुड बी सेपरेटेड आइदर बाय अ कॉमा और बाय यूजिंग द वर्ड एंड। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे एडजेक्टिव्स अगर एक सेंटेंस में आ रहे हो तो हम लोग कॉमा या फिर कंजंक्शन जैसे एंड को यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप के एडजेक्टिव्स को वी बेसिकली पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। ओके, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स जो है वो मॉडिफाई करते हैं सेम नाउन को। ठीक है, मतलब कि 3-4 एडजेक्टिव्स होंगे लेकिन एक ही नाउन होगा और उसी नाउन को जो है ये लोग मॉडिफाई करने का काम करेंगे। जैसे दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग कोल्ड विंटर। ओके, लॉन्ग कोल्ड, विंटर यहाँ पे नाउन है। ठीक है, विंटर लंबा भी होता है, एवरीबडी नोज की कैसे जो है अक्टूबर से स्टार्ट हो जाता है और टिल फरवरी तक जो है, मतलब नॉट अक्टूबर बट नवंबर से ज्यादातर स्टार्ट हो जाता है, टिल फरवरी इट कंटिन्यू, समटाइम्स इवन मार्च। अभी तो जो है पूरा क्लाइमेटिक सिस्टम ही चेंज हो चुका है। सो नाउ बेसिकली विंटर स्टार्ट फ्रॉम दिसंबर एंड इट कंटिन्यूज टिल द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके, ऐसा टाइप का हो गया। सो वी नो कि विंटर्स आर वेरी लॉन्ग, ऑल्सो इट इज वेरी कोल्ड। So long and cold will be both adjectives and it is modifying the noun winter. Okay. Again, the second sentence, Isabel dedicated and tireless efforts made all the difference. Okay, so Isabel के dedicated और tireless efforts के कारण उसी सारी चीजें को डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड का यूज हुआ है, यहाँ कॉमा का यूज हुआ है। तो ऐसा जब भी कभी हो, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट विल बी कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। Again, we will be seeing different types of adjectives. Okay, like predicate, compound, possessive, demonstrative, proper, participle, limiting, descriptive, interrogative, distributive और attributive। okay, ये सारे के सारे types we are going to see। almost 12 types of adjectives होते हैं। again, ये जो
the two adjectives which you are seeing at the top, that is comparative and superlative. So basically this adjectives are also the types, but we will study it under the category of degrees. Okay, degrees of comparison के अंदर जो है हम इसको study करेंगे. Okay, so now first focus on the other adjective. So predicate adjective, first is the predicate adjective. Predicate adjective basically appear in the predicate. So as a student or as the child we know that subject होता है sentence में और दूसरा जो है वो predicate होता है. Okay, let me open the new slide. Okay, it has not opened, just a second. Yeah. So here you can see that we know, suppose we take any of the sentence. Okay, like here the sentence is Tina was fat. Okay, Tina was fat. Okay, Tina was fat. Okay. हाँ, Tina was fat. Okay. So Tina was fat. So we know that sentence में जो है वो subject comes and basically predicate comes. Okay. Subject and predicate both comes. So यहाँ पे Tina will be the subject. Okay, Tina will be the subject and predicate will be basically fat. Okay, ये हम लोग को पता है. We have been doing this from our childhood. Okay, जैसे subject और predicate पे जो है sentence को divide करते हैं. Predicate हमेशा last part जो होता है sentence का वो होता है. Okay, so this is the thing. Again, जब ऐसा एडजेक्टिव के केस में हो रहा हो ना कि प्रेडिकेट आ रहा हो सेंटेंस में या फिर द एडजेक्टिव इज एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. ओके, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जैसे कि हम लोग ने लिंकिंग वर्ब में भी देखा था. सो दैट एडजेक्टिव विल बेसिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट एडजेक्टिव. ठीक है, मतलब लिंकिंग वर्ब में हम जो एडजेक्टिव्स को देख रहे थे जो कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो दैट एडजेक्टिव विल बेसिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट एडजेक्टिव. Predicate adjective basically follows the linking verb. Okay, here you can see in the sentence and the clauses. और predicative adjectives जो है वो या तो noun या तो pronoun को modify करने का काम करेंगे. Okay, so again you have to remember this thing also कि खाली noun को ही नहीं but adjectives pronouns को भी कभी कभी describe करने का काम करते हैं, लेकिन हाँ verb दूसरे adjectives और दूसरे adverbs इसको modify करने का काम बिल्कुल भी नहीं करते. Okay, so again you can see this thing, Andrea is tall. So यहाँ पे Andrea subject है, is जो था linking verb था, tall जो था वो predicate adjective हो गया. Freddie became angry, again become linking verb, angry predicative adjective. Stick looks delicious, delicious predicate adjective, looks जो है वो linking verb हो गया, stick जो है वो subject हो गया. ठीक है, so this is the thing. Again here you can see this dialog box also that I was telling you. So now we will do some of the exercises. Okay, so you have to identify the predicate adjective in the following sentence. The trip was long, tiring and boring. So यहाँ पे क्या हो जाएगा predicate adjective. What will be the predicate adjective here? Yeah, so long, tiring and boring हो जाएगा. Okay, also you must be noticing one thing, जैसे हम लोग ने बोला था ना कि एक साथ तीन चार एडजेक्टिव आ रहे हो तो कॉमा लगा देते हैं. यहाँ देखो कॉमा है, यहाँ पे एंड है, तो ये तीनों एडजेक्टिव्स जो है ना वो कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स भी हो जाएंगे. कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स आल्सो. ओके, अगेन यू आर ब्रिलियंट एंड स्ट्रॉन्ग. या so brilliant and strong. Again it will come under the category of coordinate adjective. Okay, so now I hope you have understood this thing. Now you have to identify the linking verb in each sentence. Okay, so first one is his new car is Japanese. So what will be the linking verb?
नॉट एडजेक्टिव, लिंकिंग वर्ब बताना इज हो जाएगा. ओके ओके. फोर्थ वन, आवर गेस्ट कुड बी लेट. सो व्हाट विल बी द लिंकिंग वर्ब? कुड बी. ओके, अगेन यू मस्ट बी नोटिसिंग दिस थिंग कि कुड बी जो है ना वो लिंकिंग वर्ब का टू बी फॉर्म है. जैसे हम लोग ने देखा था कि टू बी फॉर्म में इज, एम, आर, कैन, कुड ये सब आ रहे हैं, तो कुड आ रहा है देखो, तो यहीं पे यही होता है. ओके, अगेन इन दिस सेंटेंस ऑल्सो विल बी इज द लिंकिंग वर्ब. अगेन ये टू बी का ही फॉर्म. So now we are moving to the next type of adjective, that is compound adjectives. As we have seen in the compound noun, ठीक है, वैसे ही है बिल्कुल भी ये adjective. तो compound adjectives जो है वो एक साथ multiple words को मिला के बनते हैं. ज्यादातर compound adjectives को हम hyphens के साथ connect करते हैं. ठीक है, हम लोग ने जब noun पढ़ा था तब मैंने ये बताया था कि कंपाउंड नाउन के थ्री टाइप्स होते हैं. एक हाइफन वाले होते हैं जिसको हम लोग हाइफेनेटेड बोलते हैं, दूसरा ओपन होता है यानी कि सिर्फ स्पेस रहता है उसके बीच में, और दो वर्ड्स जो है वो एक ही वर्ड्स के समान किया जाता है काउंट. अगेन एक क्लोज वाला होता है. ओके, जैसे बेडरूम हो गया या बाथरूम हो गया, तो ये सारे क्लोज हो जाएंगे. लेकिन कंपाउंड एडजेक्टिव्स जो है वो हमेशा ज्यादातर हाइफेंस के साथ कनेक्ट किए जाते हैं, एंड इट इज मेड अप ऑफ मल्टीपल वर्ड्स, यानी कि टू या मोर देन टू वर्ड से बने रहेंगे. लाइक हियर यू कैन सी नेवर एंडिंग, क्रॉस आइड, रन ऑफ द मिल, फोर वर्ड से बना हुआ है. अगेन यू कैन सी द एग्जांपल आल्सो, she had enough of the double dealing salesman, my happy go lucky daughter loved our trip to Disneyland, the better off members of the city live by the river. Okay, so this is compound adjective. Now again we will be doing the exercise. So यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में कुछ एडजेक्टिव दिए, सेकंड बॉक्स में भी एडजेक्टिव दिए, आपको जो है वो कनेक्ट करना है, यानी कि कंपाउंड एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करनी है. ऑल्सो रिमेंबर वन थिंग, कंपाउंड एडजेक्टिव्स कितने भी मल्टीपल वर्ड्स को कनेक्ट कर ले, लेकिन फंक्शन वो सिंगल एडजेक्टिव के रूप में ही काम करेंगे. ओके, दे विल फंक्शन एज अ वन सिंगल एडजेक्टिव ओनली, जस्ट एज इट वाज इन द केस ऑफ कंपाउंड नाउन. सो सपोज आई एम मेकिंग द वर्ड एब्सेंट, एब्सेंट क्या हो जाएगा, एब्सेंट माइंडेड. ओके, तो अब यहाँ पे डार्क वर्ड है, सो व्हाट विल बी द perfect word, or you can say combining word, in order to make the compound noun? ओके, तो डार्क के साथ हेयर्ड बिल्कुल बन जाएगा, डार्क हेयर्ड. ओके ओके, आई के साथ क्या बनेगा, डार्क के साथ एक और वर्ड बन सकता है, डार्क स्किन. ओके, डार्क स्किन भी बन सकता है. तो व्हाट विल बी द वर्ड फॉर आई? आई के साथ क्या कंपाउंड एडजेक्टिव्स बनना चाहिए? आई साइटेड तो नहीं हो जाएगा, फार साइटेड होता है. ओके, आई के साथ हो जाएगा कैचिंग, आई कैचिंग. वी टेल ना दैट दिस इज वेरी आई कैचिंग, यानी कि कोई भी चीज जो अट्रैक्ट कर रही है आपको, सो आई के साथ कैचिंग हो जाएगा. ओके, so like this you can make the compound sentence. The next type of adjectives is possessive adjective. तो सेम ही है जैसे हम लोग ने possessive noun में देखा था. possessive adjectives जो है वो possession और ownership दिखाने के काम आते हैं. Most common types of adjectives है my, your, its, her, his, our, their and whose. Okay, ये जो है ना बेसिकली possessive adjective हो जाएगा. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि my, your, its, her, his, our, their, whose, ये सारे के सारे जो है ना वो एडजेक्टिव है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द प्रोनाउन. ओके, प्रोनाउन के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, ये एडजेक्टिव्स की ही कैटेगरी में आता है. मतलब एक तरह से पॉजेसिव एडजेक्टिव्स और प्रोनाउंस बहुत ही ज्यादा सिमिलर होते हैं. सो माई फेवरेट फूड इज पिज्जा. सो यहाँ पे माई जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा पॉजेसिव वाला, क्योंकि फेवरेट फूड पे पॉजेशन दिखाया जा रहा है. Canadians celebrated their team's victory at the Olympics. Again, team पे possession दिखाया जा रहा है, so there will be possessive adjective. Okay, so now you have to choose the correct word.
इज दिस कप योर होगा या योर्स होगा? बेसिकली वी आर डूइंग द पॉजिटिव एडजेक्टिव एक्सरसाइज ओनली बट इन अ डिफरेंट वे. या तो योर्स हो जाएगा. दैट कोट इज माई होगा या माइन हो जाएगा? थर्ड वन माइन हो जाएगा. ओके, सो लाइक दिस यू हैव टू डू द दिस थिंग. ओके, क्योंकि इस तरह के एक्सरसाइज हैव आल्सो कम इन योर एग्जाम, दैट इज व्हाई. Okay, the next type of adjective that we are going to see is basically demonstrative. Demonstrative adjectives ऐसे adjectives होते हैं जो कि relative position बताए space और time का. जैसे हम लोगों ने demonstrative pronoun किया था ना, कि demonstrative pronoun वो pronoun होते हैं जो कि specific चीज को point out करते हैं. यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है. थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जा रहा है. मीनिंग क्या चेंज हो रहा है कि कोई भी चीज, जैसे सपोज कि कोई भी टाइम है या कोई भी स्पेस है, मीन्स कोई भी थिंग है, तो उससे रिलेशन में कैसे जो है हम डिस्क्राइब करेंगे, दैट विल बेसिकली कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव विल बी दीस, दैट, दीज एंड दोस. ठीक है, मतलब अगर किसी से आपको कंपेयर करना हो कोई चीज से, so we will be using demonstrative adjective. Suppose here the example is this watch is cheaper than that one. ठीक है, तो हम यहाँ watch को compare कर रहे हैं. This demonstrative adjective हो जाएगा. Watch out for those prickly rose bushes next to you. Again those bushes. तो यहाँ पे bushes के साथ comparison किया जा रहा है या फिर relation बताया जा रहा है. ठीक है, तो कहीं पे भी relation हो, कहीं पे भी comparison हो adjectives में, so that will basically come under the category of demonstrative adjective. Again, here are many examples which you can see. Okay, so let's do the exercise once again. Can you see those colors in the sky? So what will be the demonstrative adjective here? Yeah, yeah. So those हो जाएगा. Okay, those will be the, again, fourth one. That movie was very interesting, however, full of much suspense. That हो जाएगा. Okay. So now we will move on to the next category of proper adjective. Proper adjectives ऐसे adjectives होते हैं जो कि proper noun से form होते हैं. Okay. So again यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि noun से बहुत सारी चीजें connected है, pronoun से बहुत सारी चीजें connected है adjective. ठीक है, क्योंकि noun और adjective का relation है. Adjective जो है वो noun को modify, describe करता है, that is. So proper adjectives जो है proper noun से form होते हैं. प्रॉपर एडजेक्टिव जैसे प्रॉपर नाउन फंक्शन करते हैं ना, कि कोई भी स्पेसिफिक चीज या यूनिक चीज को पॉइंट आउट करना हो या प्लेस को पॉइंट आउट करना हो, उसके लिए हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव का यूज करेंगे. अगेन सिर्फ पर्सन और प्लेस के लिए ही यूज होता है प्रॉपर एडजेक्टिव. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, सो अगेन द एग्जांपल ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव वुड बी अफ्रीकन, नेपोलियनिक, शेक्सपियरियन. ठीक है, ही वाज रीडिंग अ रशियन न्यूज़पेपर. तो रशिया का न्यूज़पेपर है रशियन, तो यहाँ पे प्लेस हो गया. I think Haitian food is tasty. Okay, so Haiti नाम की एक कंट्री है. We study the history of Victorian England in school today. Okay, so Queen Victoria के रेन को Victorian England बोलते हैं, जैसे कि अभी जो है वहाँ की रानी क्वीन एलिजाबेथ है. Okay, so प्लेस और पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रॉपर एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे. Some more examples are given which you can check. The next type of adjectives are participle adjectives. Okay, participle adjectives जो है वो participle के ऊपर बेस्ड रहते हैं. जैसे कि हम लोग ने कल verb में देखा था, and it usually ends in ed और ing. ठीक है, so remember we were doing this ed form जो कि verb का थर्ड फॉर्म होता है, जो कि verb का past participle फॉर्म होता है, और ये ing फॉर्म जो कि नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी में आता है. सो सेम चीजें जब यहाँ एडजेक्टिव्स में आ जाती है, so it will become participle adjectives. Words would be, example would be amazing, impressed, fascinating. Okay, so this is the thing. Again, Travis was late for his swimming lessons. Please hand me my reading glasses. The silly clown cheered up the bored children. Okay, so ये जो है ना वो चीजें हो जाएंगी. Again, what is the limiting adjective? तो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स हो जाएंगे जो कि नाउन या फिर प्रोनाउन को रेस्ट्रिक्ट कर दे. ओके,
they will restrict the noun or the pronoun rather than describing its characteristics or qualities. ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है कि वो नाउन की क्वालिटीज को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है, लेकिन एक ऐसा तरह का एडजेक्टिव होता है जो कि लिमिटिंग एडजेक्टिव होता है, जो कि ये सारी चीजों को ना रोक देता है। ठीक है, और लिमिटिंग एडजेक्टिव बहुत सारे एडजेक्टिव के साथ ओवरलैप भी करता है, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, पजेसिव हो गया। लिमिटिंग एडजेक्टिव के एग्जांपल हो गए दिस, योर एंड सम। तो आप लिमिटिंग एडजेक्टिव्स को ना क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में भी डाल सकते हो। ठीक है, दैट इट इज अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। जैसे मैंने बोला था ना, क्वांटिटी बताते 11, फ्यू, मेनी, तो ये उसी की कैटेगरी में आ जाएगा। आई बॉट सम एग्स एट द स्टोर, सम क्वालिटी नहीं बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। शी फाउंड 3 pennies, ठीक है, अगेन क्वांटिटी। टेक अ लुक एट दैट हाउस, ठीक है, अगेन एक हाउस के बारे में बात हो रही है, बट यहाँ पे आपको पता है दैट जो है ना वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आ जाएगा, जैसे यहाँ पॉइंट में लिखा भी है कि ओवरलैप करते हैं। ओके, सो कीप दिस थिंग इन माइंड। अगेन लिमिटिंग एडजेक्टिव्स जो है वो नाउन और प्रोनाउन को और ज्यादा स्पेसिफिक बताते हैं और ये क्वेश्चन आंसर करते हैं कि कितना है, विच वन, हाउ, नहीं कौन सा है, हाउ मेनी, हाउ मच। ओके, सो दीज, दैट, आवर, 96, राइट, लेफ्ट, फ्यू, मोर, व्हाट, विच, सारे के सारे जो है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में आ जाए। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तो सबसे सिंपल है, क्योंकि जैसे बोला गया है कि एडजेक्टिव का जो काम है ना, वो क्या काम है, दैट इट बेसिकली यूज टू डिस्क्राइब। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करना हो, ट्रेड्स को डिस्क्राइब करना हो, क्वालिटीज को डिस्क्राइब करना हो, उसी चीज के लिए तो वी यूज बेसिकली एडजेक्टिव्स। ओके, same thing happens with the descriptive adjectives as well, like words purple, friendly, attractive, ये सारे के सारे जो है descriptive adjectives की कैटेगरी में ही आ जाएंगे। ओके, a lot of interesting people visit this park, इंटरेस्टिंग एक डिस्क्रिप्शन है कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोग आए। शी टोल्ड अ स्केरी स्टोरी, स्केरी अगेन एक डिस्क्रिप्शन है स्टोरी का। द लीव्स टर्न ऑरेंज एंड रेड, लीव्स का डिस्क्रिप्शन है कि ऑरेंज और रेड हो गए। ओके, अगेन बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स है, क्लमजी, enthusiastic, exciting, sure-footed, tight-fisted, courageous, annoying, amused, alive, agreeable, comfortable, evil। ओके, सो ये सारे के सारे हो जाए। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, जैसे कि हम लोग ने इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी देखा था। So what, which, whose, ये सारे के सारे it will come into the category of interrogative pronoun. Like what color is your favorite? Which button turns off the light? Whose turn is it to wash the cat? Okay. Again, attributive adjective. So attributive adjectives ऐसे adjectives होते हैं जो कि basically it come directly next to the noun and pronoun and they modify. Okay. So जैसे हम लोग ने ऊपर in the above slides we have seen this thing that most of the adjectives basically come before the noun, okay, and they basically try to modify it. Same thing happens in the attributive also. हमेशा ऐसा होता है कि adjectives noun के पहले आते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही, कभी कभी हो सकता है noun के बाद आए या फिर सेंटेंस स्टार्ट में आ जाए, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव देखा था ना, दीज, दैट, दोस। ओके, बट एट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एट्रीब्यूटिव में सिर्फ और सिर्फ जो है नाउन डायरेक्टली उससे पहले आएंगे या उसके बगल में आएंगे। ठीक है, मतलब नेक्स्ट आएंगे, बिफोर आ सकते हैं, आफ्टर आ सकते हैं, पर अगल बगल में ही नाउन के आएंगे। ओके, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। अगेन यू कैन सी एज आई हैव टोल्ड यू, नाउन और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। ओके, सो शी हैज अ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, she has a beautiful handwriting. Okay, handwriting. The hungry gorilla ate the mangoes. Gorilla और mangoes दोनों नाउन है, उसके पहले आ रहा है, अगल बगल आ रहा है। ओके, यहाँ पे has जो है वो प्रोनाउन है, उसके बगल में आ रहा है। Keith gave his dad something special for his birthday. Okay, अगेन स्पेशल जो है यहाँ पे ये हो गया, और समथिंग जो है ना वो नाउन हो गया। ओके, सो यही है कि अगल बगल में अगर कोई भी एडजेक्टिव आ रहा हो सो इट विल बी एट्रीब्यूटिव। अगेन एट्रीब्यूटिव जो है वो साइज, वेट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एज, शेप, कलर, ये सारी की सारी चीजें बताएं। द नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि बेसिकली यूज टू रिफर द मेंबर ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं ग्रुप में और हमको इंडिविजुअली किसी को पॉइंट आउट करना है। सो फॉर दैट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड।
like each, every, either and neither. Again we have seen this thing in distributive pronoun also. Okay, same चीज होती है. Each puppy got their own little dog house. ठीक है, तो सारे पपीज को हम लोग बोल दे रहे हैं, भले ग्रुप में हो पपीज, इंडिविजुअली रिफर कर दे रहे हैं. एवरी मेंबर ऑफ द टीम स्कोर्ड अ गोल, पूरे टीम को रिफर कर रहे हैं लेकिन सारे मेंबर को भी कर दे रहे हैं इंडिविजुअली. ओके, सो दिस इज द केस. So distributive adjective basically show the things or person are counted collectively. ठीक है, जब person और things को collectively count करना हो, refer करना हो, उसके लिए हम distributive adjectives का use करें. Now basically we will move on to the degrees of comparison. जैसे मैंने बोला था, तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव्स होते हैं जो कि दो चीजों को कंपेयर करते हैं. ओके, टू डिफरेंट थिंग्स और टू डिफरेंट पीपल, लाइक स्मॉलर, फास्टर, मोर एक्सपेंसिव, लेस रीजनेबल. ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, व्हेल्स आर लार्जर एनिमल देन डॉल्फिन्स. व्हेल्स को कंपेयर किया जा रहा है डॉल्फिन से. सो लार्ज विल बी द बेस वर्ड, लार्जर जो है वो कंपैरेटिव हो जाएगा. जैसे हम लोग ने वर्ब में देखा था ना, बेस फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म आता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही होगा कि एडजेक्टिव का बेस फॉर्म आएगा. ठीक है, बेस, देन कंपैरेटिव विल कम एंड देन सुपरलेटिव विल कम. ओके, सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर बेसिकली यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू पीपल, या फिर बहुत सारी चीजों में कंपेयर करना हो. ठीक है, मतलब कि दो से ज्यादा चीजें हो. ठीक है, बहुत सारी चीजें में भी कंपेयर करने के लिए वी बेसिकली यूज सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, मतलब सबसे सुप्रीम, सबसे एक्सट्रीम भी अगर हम लोग को रिफर करना हो, कंपेयर करना हो, so we basically use the superlative adjective. एड्रियन इज द फास्टेस्ट मेंबर ऑफ आवर टीम. पूरी टीम के साथ कंपेयर कर रहे हैं एड्रियन को, तो फास्टेस्ट. वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट द लीस्ट कंफ्यूजिंग वे टू एक्सप्लेन द लेसन टू द न्यू स्टूडेंट. ओके, सारे स्टूडेंट के साथ कंपेयर किया जा रहा है. So this is the thing, and this was the table that I was telling you. You can see this table. As you can see in this table, basically first box is basically pink box is base word. Okay, सेकेंड बॉक्स कंपैरेटिव है, थर्ड वाला जो ग्रीन बॉक्स है वो सुपरलेटिव है. ठीक है, और एक चीज और होती है विच आई विल टेल यू हियर, कि कंपैरेटिव के लिए ना वी मोस्टली यूज ईआर. ठीक है, मतलब लास्ट में ईआर आता है, या फिर हम जो है मोर या फिर लेस यूज करेंगे. सुपरलेटिव के लिए, जो कि सारे चीजों में कंपेयर करने के लिए काम आता है, EST का यूज करेंगे, यानी कोई भी वर्ड के लास्ट में EST आ रहा हो, या फिर मोस्ट या फिर लीस्ट का यूज करेंगे. ओके, so this is the case which you have to see. So here you can see again, cheaper, ER आ रहा है, cheapest. Okay, most boring, जैसे मैंने बोला more boring. Okay, तो ER जो है वो लास्ट में आता है बहुत सारे केस में, या फिर more और less आएगा कंपैरेटिव में, या EST आएगा और most और least आएगा. So again यहाँ पे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को एक्सप्लेन किया गया है. वही वाली बात है जो ER और EST वाला मैं बोल रही थी ना. तो क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट, न्यू, न्यूअर, न्यूएस्ट, चीप, चीपर, चीपेस्ट. ओके, अगेन सी दिस थिंग. सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट. अब एडजेक्टिव्स जो कि दो सिलेबल्स में एंड हो रहे हो, तो उसके लास्ट में भी ER लगाएंगे. ओके, जैसे कि यहाँ बोलने का मतलब ये है, चेक दिस वर्ड क्लेवर. ठीक है, लास्ट में एंडिंग ER आ रहा है, तो ER आ रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग ER फिर से जोड़ेंगे, क्लेवरर करेंगे. उसके बाद EST जोड़ेंगे, क्लेवरेस्ट. बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स है वो एलिमेंट होता है, तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ जो है आर ऐड कर देंगे कंपैरेटिव में, और एसटी ऐड कर देंगे सुपरलेटिव में. सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट. बहुत सारे एडजेक्टिव OW बैंड होते हैं, तो यहाँ पे फिर से वही ER लगा दिए, EST लगा दिए, नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट. अगेन बहुत सारे जो एडजेक्टिव्स है वो ER और EST बैंड होते हैं. सो अगेन यू कैन सी दिस थिंग, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, शाई, शायर, शाइस्ट. बहुत सारे एडजेक्टिव्स को कंपेयर करने के लिए मोर और मोस्ट का
यूज किया जाता है. सो सपोज हियर द वर्ड इज डिफिकल्ट, तो ऐसा करिए डिफिकल्टियर और डिफिकल्टिएस्ट करें. सो वी विल पुट द वर्ड बोर. ओके, बोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट. Again here the dialog box is there and you can see beautiful, more beautiful, most beautiful. Fascinating, more fascinating, most fascinating. Confused, more confused, the most confused. Okay. Again one more type of adjectives are there, irregular adjective. irregular adjectives ऐसे adjectives होते हैं जो कि कोई भी फॉर्म नहीं लेते या फिर चेंज नहीं होते. जैसे कि हम लोग ने देखा ना कि कंपैरिजन सॉरी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में ER EST और मोर और मोस्ट आ रहा था. तो इरेगुलर एडजेक्टिव्स ये दोनों ही फॉर्म नहीं लेते और कुछ अलग ही बन जाते हैं. जैसे कि इसका एग्जांपल है गुड. गुड का कंपैरेटिव होगा बेटर, सुपरलेटिव होगा बेस्ट. ओके, सो इट विल बी इरेगुलर. अगेन वेल का भी बेटर और बेस्ट हो जाएगा. बैड का हो जाएगा वर्स, वर्स्ट. फार का हो जाएगा फर्दर, फर्देस्ट या फिर फार्दर, फार्देस्ट. ओल्ड का हो जाएगा एल्डर, एल्डेस्ट. ओल्ड का अगेन ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हो सकता है. ओके, सो दिस इज द थिंग. ओके, जो कि ER EST वाला टाइप नहीं ले रहा हो, मोर मोस्ट वाला टाइप नहीं ले रहा हो. सो फॉर दैट एडजेक्टिव्स वी बेसिकली कॉल देम एज इरेगुलर. ओके, सेम थिंग हैपेंस इन द वर्ब्स आल्सो. ओके, व्हिच वी हैव सीन. ये वर्ब्स में भी रेगुलर और इरेगुलर वर्ब आ रहे थे. और वो भी जो है ये वर्ब वन फर्स्ट का वर्ब फर्स्ट सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को अगर फॉलो नहीं कर रहे थे तो दे वर बेसिकली कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इरेगुलर वर्ब. सेम थिंग हैपेंस इन द एडजेक्टिव आल्सो. देयर आर सम स्पेशल एडजेक्टिव्स आल्सो. स्पेशल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके दोनों ही पॉसिबल फॉर्म हो, यानी कि ER EST वाले भी और मोस्ट और मोर वाले भी. जैसे क्लेवर का क्लेवरर भी हो जाएगा, मोर क्लेवर भी हो जाएगा, क्लेवरेस्ट या मोस्ट क्लेवर भी हो जाएगा. प्लेजेंट का प्लेजेंटर, मोर प्लेजेंट, प्लेजेंटेस्ट हो जाएगा. मतलब दोनों फॉर्म हो जाएंगे. ओके, यू कैन अगेन चेक दिस स्लाइड. So this is the thing. Okay, again what happens when noun becomes adjectives and adjective become nouns. तो बहुत बार क्या होता है कि एडजेक्टिव्स जो है ना जो कि हम नाउन को मॉडिफाई करने का काम करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है कि नाउन जो है वो एडजेक्टिव्स की तरह काम करने लगते हैं. ओके, लाइक नेवर ट्राई टू पेट समवन्स गाइड डॉग विदाउट आस्किंग परमिशन फर्स्ट. सो ये गाइड जो है वो नाउन है पर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है डॉग के लिए. ओके, यहाँ पे इट इज मॉडिफाइंग डॉग. अगेन बहुत सारे एडजेक्टिव्स जो है ना वो कभी कभी नाउन्स के रूप में भी फंक्शन करते हैं. लाइक अगेन वी विल टेक द एग्जांपल, कैंडिस इज वर्किंग ऑन अ फंड रेजर टू हेल्प द होमलेस. ओके, होमलेस जो है यहाँ पे नाउन था बट इट इज एक्टिंग बेसिकली जस्ट लाइक ए एडजेक्टिव्स. ओके, सो दिस इज द थिंग. कभी कभी इंटरचेंजेबली भी हम लोग यूज कर देते हैं बट दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज. ओके, एंड द रेस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स वी हैव ऑलरेडी सीन. ओके, so with this we have completed the topic of adjectives, different type of adjectives. बहुत ही one of the you can say part of speech का one of the simplest topic है adjectives. बहुत ही ज्यादा interesting topic भी है. So with this we have completed it. So any questions are there, any question or any doubt? Okay, so we will stop the class here and we will meet tomorrow for the next